Hello students, today we are going to study and learn the chapter chemistry in everyday life. So why we need to learn this chapter and study about the chemistry in everyday life? So because we need to learn about the how the chemistry involves in our daily life. हमारे आसपास क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, हम जो मेडिसिन खा रहे हैं उसमें क्या केमिस्ट्री है, और वी आर क्लीनिंग समथिंग, हम कपड़े धो रहे हैं, ये कर रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, तो उसमें व्हाट आर दोज केमिस्ट्री इन्वॉल्व्स. हम खाना खा रहे हैं, हम पैक्ड फूड खा रहे हैं, तो उसमें ऐसे क्या केमिकल्स होते हैं जो कि वो खाना हमारे तक प्रॉपर आ रहा है, इतने दिनों तक खाना सड़ नहीं रहा, रॉट नहीं हो रहा. तो वी आर जस्ट गोइंग टू स्टडी अबाउट all the chemistry happening nearby or just taking place in our surrounding. So in this chapter we are just going to cover medicine. In medicine there are analgesics, antipyretics like जो ब्लड हमारे ब्लड को थिन करता है, एंटीपायरेटिक्स हो गया, एंटी डिप्रेसेंट्स हो गया, ट्रैंकुलाइजर्स हो गया. देन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फूड, केमिस्ट्री इन्वॉल्व इन द फूड, like we are just going to study about the preservatives, then artificial sweeteners, okay, and the last is antioxidants, and the last topic we are just going to study about the cleansing agents, soaps and detergents, that how soaps work and how detergents work, how detergents clean our clothes. ठीक है. So सबसे पहले we are just going to study about the drugs. What are the drugs? Substance used for diagnosis, prevention or cure of disease. Or actual definition. What is the actual definition of drug? Those chemicals which react or interact with macromolecule targets or produce biological response. Okay. So what are here? The macromolecule targets. These are biomolecules. Biomolecules example. The examples of biomolecules we are going to talk about protein, carbohydrates, nucleic acids. Okay. So those chemicals which react or interact with biomolecules and produce biological response, that how our body reacts to that drug in a positive way or a negative way. Okay. So the changes occurs in our body while because of the reaction or interaction of the drugs or the chemicals on the biomolecules. So that is known as drugs. Again याद रखना, those chemicals which react or interact with biomolecules and produce biological response. Okay. Now what are the medicines? Those drugs, remember, those drugs which produce therapeutic effect or useful actions in diagnosis, prevention or cure. यहाँ पे important क्या है, drugs and medicines में different क्या है? अगर simple बोला जाए, those drugs which produces therapeutic effect या useful actions, या simple अगर यहाँ से हम इसको ले ले तो positive biological response, मतलब वो फायदा कर रहा है हमारे बॉडी के लिए. Those drugs which are useful in therapeutic effects or the useful action in diagnosis, prevention or cure, or makes the positive response for the biological. Okay, biological response जिसका positive हो उसको हम बोलेंगे medicines. Then यहीं पे हमारा आता है chemotherapy. What is chemotherapy? Use of chemicals for therapeutic effects. याद रखना, यहाँ पे ड्रग्स क्या कर रहे थे, हमारे बायोमोलिकुलर टारगेट्स वो कर रहे थे. ठीक है, हमारे जो बायोमोलिक्यूल्स थे उसके साथ वो इंटरैक्ट कर रहे थे, रिएक्ट और इंटरैक्ट कर रहे थे. यहाँ पे कीमोथेरेपी क्या करता है, दोज केमिकल्स विच डज नॉट रिएक्ट विथ आर बायोमोलिक्यूल्स, मतलब वो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन वगैरह इनके साथ रिएक्ट नहीं करता है, वो एक टारगेट करते हैं. टारगेट मतलब जो सिंपल एग्जांपल लेते हैं अगर हम कैंसर का, कैंसर सेल्स धीरे धीरे बढ़ते हैं, ट्यूमर कॉज करते हैं, ट्यूमर फॉर्म करते हैं. उस ट्यूमर पे अगर हम कोई केमिकल यूज़ करते हैं, कोई भी केमिकल अगर हम लेते हैं दैट रिड्यूसेस द ट्यूमर और फिनिश द ट्यूमर, ओके, वहाँ पे, और उस केमिकल के यूज़ करने से हमें क्या फ़ायदा मिल रहा है, यहाँ पे उसके थेराप्यूटिक इफेक्ट्स मिल रहे हैं हमें.
ठीक है, थेरेप्यूटिक इफेक्ट मतलब वो हमारा क्योर दे रहा है, उसे कैंसर को वो ख़त्म कर रहा है हमारे बॉडी से। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज कीमोथेरेपी। द केमिकल्स फॉर थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स इज नोन एज कीमोथेरेपी। ठीक है, लास्ट क्या आता है हमारा, पॉइजन। अगेन रिमेंबर दोज ड्रग्स which are toxic and causes harm or death, harm or death कर देगा यहाँ पे। अब हम इसको बोले, यहाँ पे हमने मेडिसिन को क्या बोला, पॉजिटिव बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, और ये क्या आ जाता है हमारा, नेगेटिव बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। दोज ड्रग्स which react or interact with biomolecules and causes negative biological response are known as poison. So those drugs which are toxic and causes harm or death are known as poison. ठीक है, now क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। ज़रूरी नहीं है ना सारे ड्रग्स को हम एक ही कैटेगरी में ले लें, डिपेंड करता है ड्रग्स की क्या क्वालिटीज़ है, ड्रग्स कैसे होता है, कैसे वर्क करता है, उसके वर्क के बेसिस पे, उसके थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स के बेसिस पे हम ड्रग्स को क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। सो व्हाट इज़ द वेरी फर्स्ट क्लासिफिकेशन? On the basis of pharmacological effect. What is pharmacological effect? Used by doctor. Simple way. Used by doctors. Those drugs which are used by doctors. जनरली सारे ड्रग्स डॉक्टर्स ही प्रेफर करते हैं, बट हम जनरली इसको लेते हैं जो हमारे पास, जो डॉक्टर्स हमें इनिशियल वो देते हैं। तो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट जैसे जिनका होता है, हम उसको ऑन द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के बेसिस पे हम इसको डिफाइन करते हैं। सो द वेरी फर्स्ट एग्जांपल अगर हम इसको मैं एक्सप्लेन करूँ तो एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स, व्हाट आर एनाल्जेसिक्स? सिंपल बोले तो पेन किलर्स। पेन किलर खाया होगा तुमने, कॉम्बीफ्लेम हो गया, ठीक है, पेन किलर्स। पेन किलिंग ड्रग्स, ओके। दूसरा एग्जांपल ले अगर तो एंटी डिप्रेसेंट। used for change mood or lower the depression। ठीक है, ये दो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है, उनके बेसिस पे हम इसको डिफाइन करते हैं। सिंपल अगर बोला एनाल्जेसिक्स हो गया, पेन किलर, इसके बारे में भी हम पूरा पढ़ेंगे। वी आर जस्ट गोइंग टू रीड अबाउट द एनाल्जेसिक्स एंड एंटी डिप्रेसेंट्स, व्हाट आर दिस, व्हाट आर देयर केमिकल स्ट्रक्चर एंड हाउ दे रिएक्ट विद इन आवर बॉडी, ओके। सेकेंड, on the basis of biological or biochemicals,
सो यहाँ पे बायोकेमिकल प्रोसेस की बात हो रही है, जैसे कि जो हमारे बॉडी में बायोकेमिकल प्रोसेसेस होते हैं। बायोकेमिकल प्रोसेस कैसे हो गया, अगर ले जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल ले ले जरा, एंटी हिस्टामीन। Antihistamine. This drug is used for lower the histamine and does not allow the pain to be felt। ठीक है, अगर सिंपल टर्म्स में अगर बोले, हिस्टामीन किस लिए यूज़ होता है? द यूज़ ऑफ हिस्टामीन। हिस्टामीन क्या होता है? हमारे बॉडी में एक बायोमोलिक्यूल या केमिकल है दैट ट्रांसफर द मैसेज टू द ब्रेन। ठीक है, कि हमारे इस बॉडी में पेन हो रहा है। अगर कोई स्वेलिंग होगी, हमारे हाथ में स्वेलिंग हो गई, हम गिर गए, हमारे हाथ में स्वेलिंग हो जाती है, तो स्वेलिंग की वजह से क्या होता है? हिस्टामीन क्या करता है? उसको ट्रांसफ़र करता है नर्व सेल्स के थ्रू, वो हमारे ब्रेन तक ट्रांसमिट होता है। ठीक है, तो एंटी हिस्टामीन ड्रग्स क्या करते हैं? उस हिस्टामीन को ही लोअर डाउन कर देते हैं। ठीक है, उस मतलब हिस्टामीन के साथ रिएक्ट करके और इंटरेक्ट करके उस हिस्टामीन को लोअर डाउन कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें पेन फील नहीं होता है। जैसे कि अगर कोई भी ऑपरेशन होता है किसी का, या स्टिचेस लगते हैं, स्टिचेस लगे होंगे तो देखा होगा कि हमारे को इंजेक्ट किया जाता है, डैट इज़ एंटी हिस्टामीन, जो कि उस एरिया के वो उनको हिस्टामीन को वो लोअर डाउन कर देता है और इससे हमें पेन फील नहीं होता, और वो इजीली अपना डॉक्टर्स जो है वो ऑपरेशन आगे करते हैं। ठीक, सो दैट वाज द एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस। Third is on the basis of chemical structure। एक खासियत होती है यहाँ पे क्या होता है? केमिकल स्ट्रक्चर अराउंड सेम होता है। अराउंड सेम जस्ट बताता हूँ अभी मैं, एक एग्जांपल लेते हैं। सल्फोनामाइड्स। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग विच इज़ यूज एज अ एंटी माइक्रोबियल। जो हम बॉडी में जैसे हमारे एंटी बैक्टीरियल बोले, एंटी माइक्रोबियल बोल रहे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है जो जनरली यूज़ होता है। सो यहाँ पे क्या है कि स्ट्रक्चर सेम है, एंड के फार्माकोलॉजिकल जो इफेक्ट्स हैं, या बोलो कि इनके थेराप्यूटिकल जो इफेक्ट्स हैं, सेम chemical structures and same or different therapeutical effects। यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है तुम्हें, सेम केमिकल स्ट्रक्चर का मतलब अराउंड सेम केमिकल स्ट्रक्चर अगर बात करें तो ये R दिख रहा है तुम्हें। इस R की जगह कुछ भी ले लो, CS3 C2H5, ठीक है, C3H7, ओके। R की जगह यहाँ पे कुछ भी लगा लो, तो अराउंड मतलब हम बोले कि इस R को बस चेंज कर सकते हैं हम, केमिकल स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा, सल्फोनामाइड्स ही बोलेंगे हम उसको फिर भी, ठीक है। बट वहाँ पे क्या हो जाता है, थेराप्यूटिकल इफेक्ट्स उसके चेंज भी हो सकते हैं और कभी कभी सेम भी रहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर।
या दूसरा अगर इसका एग्जांपल लूँ मैं तो अल्कोहल, अल्कोहल्स के एग्जांपल। अल्कोहल क्या होता है, डू यू नो, स्पिरिट, सैनिटाइजर, ठीक है, ऑल आर डिफरेंट। इथेनॉल इज यूज्ड एज अ सैनिटाइजर, ओके। some alcohol like if we talk about ethanol only and कुछ जो इथेनॉल सॉरी अल्कोहल्स होते हैं, दैट इज ऑल्सो यूज्ड एज द पेन किलर और पेन रिलीवर, सॉरी नॉट पेन किलर, पेन रिलीवर, पेन रिलीवर की तरह भी यूज होते हैं कुछ अल्कोहल्स। तो अल्कोहल्स में क्या है, यहाँ पे ROH, बस यहाँ पे R चेंज हो जाता है एंड उसके थेराप्यूटिकल इफेक्ट्स भी चेंज हो सकते हैं, ओके। So that was on the basis of chemical structure. We're just going to read about all this. अभी सिर्फ हम क्लासीफाई कर रहे हैं और उसके साथ एक एक एग्जाम्पल देता जा रहा हूँ मैं। इन सब के बारे में भी हम बात करेंगे आगे। एंड लास्ट आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट्स। मॉलिक्यूलर टारगेट्स, हमारा मॉलिक्यूलर टारगेट्स की अगर हम बात करें तो क्या, सबसे पहले हमने ड्रग्स में क्या है वो डेफिनेशन में लिखा था, दोज ड्रग्स विच रिएक्ट और इंटरैक्ट विथ बायोमॉलिक्यूल्स। सो मॉलिक्यूलर टारगेट्स की हम सिंपल बात करें तो इंटरैक्शन विथ कार्बोहाइड्रेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड एक्सेट्रा, ठीक है। व्हाट आर दीज? दीज आर बायोमॉलिक्यूल्स, अंडरस्टूड। सो यहाँ पे हमारा आ जाता है these four classifications। on क्या क्या क्लासिफिकेशन था, ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट एंड ऑन द बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है।